કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી અને આસામથી ગુજરાત સુધી આંતરિક વ્યવસ્થાઓ, આંતરિક સુરક્ષાની વ્યવસ્થાઓ અને જે ચેલેન્જીસ હતી એ ચેલેન્જીસને પૂરી કરી અને આજે દેશને ખૂબ સિક્યોર બનાવ્યો. સાયબર સિક્યોરિટીથી માંડી ઇન્ટરનલ સિક્યોરિટી સુધીની તમામ બાબતો ઉપર એમનું ફોકસ રહ્યું અને પરિણામે આજે સમગ્ર દેશ ખૂબ ગૌરવનો વિષય અને ગૌરવ સાથે આત્મસુરક્ષાની ભાવના અનુભવી રહ્યો છે. અને આત્મસુરક્ષાની ભાવના હોય તો જ આપણે આત્મનિર્ભર બની શકીએ. અને આત્મનિર્ભર બનાવવાની દિશામાં એમને જે પગલાં લીધા છે, હું માનું છું કે 2047નું જે વિઝન આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે મૂક્યું છે એને પાર કરવા માટે શાંતિ, સલામતી અને સુરક્ષા આ 3 પાયા ખૂબ મહત્વના રહે છે. અને આપે જોયું હોય તો ગઈકાલે જ ભારતની સંસ્કૃતિ અને ભાવનાને અનુરૂપ અને વર્ષોની માંગ હતી એવા રામ મંદિરના ઓપનિંગ વખતે ખૂબ બધા ડિગ્નિટરીઝ અયોધ્યામાં આવ્યા અને છતાં પણ ખૂબ બધી થ્રેટ વચ્ચે પણ આ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી, એક્સપર્ટ્સના માધ્યમથી આખો પ્રસંગ ખૂબ સુંદર રીતે આપણે પસાર કરી શક્યા. આમ NFSUનું યોગદાન અને સાથે એક્સપર્ટોનું યોગદાન પણ ખૂબ રહ્યું છે. ત્યારે આપ સૌને હું શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું કે આવતા સમયમાં આપ સૌ ક્રિમિનલ ગુનો કરવાનું વિચારે અથવા તો એ દિશામાં એની સાયકોલોજી જાય એ પહેલાં તમે સૌ સાથે મળી અને એ બાબતમાં માર્ગદર્શન કરવા માટે ઉપસ્થિત થયા છો. પોતપોતાના વિચારો મૂકવાના છો. ન્યાયાધીશો, પોલીસ અધિકારીઓ અને સાથે આ ટેકનોલોજી અને NFSUના જે સાયન્ટિસ્ટ છે એ બધા સાથે મળી અને એક બહેતર ભારત બનાવવા માટે, એક સુંદર ભારત અને સલામત ભારત બનાવવા માટેનો જે પ્રયત્ન કરો છો, આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ધન્યવાદ. Thank you, sir. May I request Honorable Justice Shri Arun Kumar Mishra ji, Chairperson, National Human Rights Commission, New Delhi, to address the intellectual gathering. Sir, please. Honorable Union Home Minister and Minister for Cooperation of India, respected Shri Amit Shah ji, Shri Harsh Sanghvi, Honorable Home Minister of Gujarat, Shri Rishikesh Patel, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Law and Justice, Dr. J.M. Vyas, Vice Chancellor of the University, Shri Priyank Kanungo, Chairperson, Child Rights Commission, Shri Ajay Bhalla, Secretary Home, Dr. Purvi Pokharel, distinguished invitees, guests. In this international conference on behavioral sciences, reintegrating expanding contours of criminology and criminalistics marks a pivotal movement not just in the field of forensic science, but the very way we understand the criminal justice system in which we promote and protect the right of victims. Thus, it is being organized in collaboration by NHRC, university, and other stakeholders. Forensic science, as we know, is a powerful tool to prevent human rights violation worldwide. The use of forensic science in the criminal justice system is utmost. Forensic investigation brings certainty. Broadening the scope and use of forensic investigations is necessary. Forensic science should work in tandem with criminology and criminal justice system, instead of being classed as a separate field of investigation. I am happy to note significant subjects of the conference, genetic factors and studying criminal behavior are essential to preventing and controlling such behavior and also predicting. Forensic psychologists in India contribute to the administration of justice by offering experts' opinion on issues related to mental health and criminal behavior.
we face environmental challenges. Green criminology and green policing in India are integral components of efforts to safeguard the environment. Given the boundary impact of environmental crimes, capacity building and collaboration between the agencies at national and international level is important. Criminology has taken a male-centered approach. Pink criminology as to crimes by women is ignored. The criminal justice system, in criminal justice system, there is no room for bias against women and marginalized groups. The principle of law is to let there be hundreds of acquittal, lest an innocent person be convicted. The Innocence Project aims to exonerate individuals who have been wrongly convicted through the use of DNA evidence to prevent injustice and to restore faith in the justice delivery system. We must evolve post-conviction review mechanism to ensure gender justice. Several jurisdictions have taken steps to criminalize coercive controls to address domestic violence. The same provides a tool to intervene before the abuse escalates to physical violence. There are poverty-related offenses. Several states in India have enacted laws to regulate or prohibit begging. Recently, the Commission has issued notices to all the states and union territories in a complaint seeking the complete eradication of begging in the country and ensuring rehabilitation and reintegration of the beggars with the mainstream of the society. An investigation has been ordered into kidnapping of children for forced begging. Several legal systems worldwide have already adopted artificial intelligence technology to aid investigations and forecast when and where crimes are likely to occur. However, bias in AI system can arise from various sources. Such systems should be monitored, evaluated for fairness, especially as they interact with the real world data and users' interactions. Methods of investigations must be modernized with proper training and know-how. The Commission is regularly organizing training of police trainers to sensitize them towards human rights. Advisory jurisdiction has been used by the Commission for preventing suicide in places of detention, ensuring mental health checkup, and improving the living condition in the mental hospitals. Orders have been passed for improvement of juvenile justice homes, shelter homes, and drug de-addiction centers. Cyberspace is being used to commit crimes. Cybersecurity is a key to fighting cyber crimes and preserving human rights. It is the most potent medium of human trafficking for sex and slavery, involving women, children, tribal and vulnerable sections of the society. Union Ministry of Home Affairs focused on cybercrime and security at the G20 conference as reflected in Delhi Declaration. Dealing with the cybercrimes require digital forensics development and know-how. It is essential to create cyber forensic software and hardware and original tools. Establishing workstations for faster and complete digital evidence examinations is required. We need more forensic science laboratories. The emphasis is on reparation of the victim rather than retribution for crime nowadays. The social reintegration of victims of crime is a critical aspect of criminal justice along with the adequate compensation for loss caused by crime. We need a victim-centric approach, recognizing victim as an integral part of the legal process. In Sunil Chand Shah, the Supreme Court has recognized the right of rehabilitation as a part of the right to life under Article 21 for the accused also. The object of modern penology is to punish, reform and rehabilitate the offender. Probation, parole, indeterminate sentences and open prisons help in rehabilitation. Recent criminal laws, notably Bharati Nyaya Sanhita, have prioritized speedy justice and simplified legal procedures for the benefit of common men
and have brought about long-awaited reforms, repealing archaic laws to be enforced now. The new Bharati Nyaya Sanhita decriminalizes suicide attempts, which is entirely in tune with Section 115 of the Mental Health Act 2017. The attempted suicide will no longer be a criminal offence. Bharati Nagrik Suraksha Sanhita 2023 ensures technology, forensic science in criminal investigation, and provisions for electronic communication in legal processes. The legislation emphasizes citizen-centric practices, ensuring victims receive timely information digitally and specific time limits for investigation, trial, and judgment pronouncement. Also, victim participation where the sentence is more than 7 years, which is a salutary provision inserted in the new act. With the enactment of new laws, we must effectively use technology and new forensics to prevent and eradicate crime and terrorism, make cyberspace safe, protect the environment, and help achieve sustainable development goals. We have become a power in the world by preserving our cultural ethos. We believe in Sarve Bhavantu Sukhina and the improvement of humans, which is a constant process. Therefore, let us approach this conference not as a passive observer, but as active participants in shaping the future course of action. Let us celebrate the triumphs and learn from the setbacks. For each step, however small, paved the way for a future, as said by Swami Vivekananda. Let us arise, awake, and stop not till the desired end is achieved. Thank you. थैंक यू सर। माननीय, आपके आशीर्वचन, प्रोत्साहन एवं सहयोग से नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी ने डिजिटल फॉरेंसिक्स का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है, जिसमें देश विदेश के आए केसेस की टेस्टिंग डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न क्षेत्रों में होगी। Center will also impart training to national and international law enforcement agencies on investigation of cases in emerging fields like cloud forensics, IoT, multimedia, CCTV, and many more. The center will also develop indigenous tools for law enforcement agencies. अब हम आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से विनम्र आग्रह करते हैं कि वे रिमोट के माध्यम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजिटल फॉरेंसिक्स का लोकार्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। Ladies and gentlemen, as per the directives of Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah ji, Center of Excellence in Digital Forensics has been designed and is a state-of-art facility created on global map. Let us have a look at the video to understand the facilities and services of the center. Sciences University, NFSU. Founded by the visionary Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi, NFSU is a symbol of his commitment to excellence and progress. India is advancing towards becoming a digital nation, with a focus on upgrading investigative capabilities to combat digital crimes. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, initiatives have been taken to strengthen cybercrime investigation. हर राज्य को गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की एक्सपर्ट्स अगर फॉरेंसिक साइंस में किसी एक देश के अंदर 5 साल के बाद होंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कह सकता हूं, तो वो भारत में होंगे और कहीं नहीं। Section 79A of the IT Act 2000 conducts digital forensics on over 1,000 exhibits from agencies like बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस विज्ञान सम्मेलन में 600 से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट्स हमारे पास आए,
जिसमें से हमने 327 abstracts different themes of victim support, justice, challenges, contemporary issues में लिए. May I request Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah ji to release the conference proceedings. May I request the other dignitaries to join Honorable Sir for the same. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय. Journal of Criminology and Criminalistics, which was discontinued by NICFS, was further revived by NFSU Delhi campus to undertake the research on the major thrust areas of criminology and criminalistics. हम पुनः आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं अन्य मंचस्थ पर उपस्थित गणमान्य से कि वे जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनलिस्टिक्स के 3 वॉल्यूम का विमोचन करें. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय. Padma Shri Dr. J.M. Vyas has been working in different arenas of forensic sciences for a period of more than 50 years. In recognition of his dedication, determination, and exemplary work in the field of forensic sciences, various scholars of India and abroad have worked and published books on forensic justice. May I request distinguished Chief Guest, Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah ji to release the fetch book of Dr. J.M. Vyas. May I request the other dignitaries also for the same. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय. Honorable Founder Vice Chancellor of National Forensic Sciences University, Dr. J. Vyas is a pioneer in the field of forensic arena in India and abroad. Honorable Sir has been conferred with Padma Shri, the 4th highest civilian award by the Government of India for recognition of immense contribution and exemplary services in the field of science. He is a man with distinct vision, fostering and inculcating prudence, efficiency, creativity, compassion to work for the development of the university and nation. A man who firmly believes in quality with work and integrity. हम सभी ने आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से to felicitate the one and only Padma Shri Dr. J.M. Vyas for his 50 years of dedicated service to forensic science and nation with world record certificate as the largest serving Indian forensic scientist. Please give a big round of applause, ladies and gentlemen. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय. NFSU and Tashkent State University of Law, which is a public higher educational institution under the Ministry of Uzbekistan, have joined hands in collaboration to offer a joint LLM program in cyber laws and cybercrime investigation under the National Education Program, which will boost the countrywide initiative. May I request Honorable Vice Chancellor, NFSU, Dr. J.M. Vyas, and Mr. Islam Beg, Vice Chancellor, Tashkent State University of Law, to exchange MOU.
Thank you, sir. NFSU is entering into MOU with National Commission for the Protection of Child Rights and setting up Center for Child Rights Advocacy. With this collaboration, NFSU and NCPCR will deal with the cases under POXCO, the cases and the strength in the child forensics. May I request Honorable Vice Chancellor, NFSU, Dr. J.M. Vyas and Shri Priyank Kanungo, Chairperson, NCPCR, to exchange the MOUs. थैंक यू सर। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के आभा मंडल से आज समस्त एनएफएसयू परिसर अभिभूत हो रहा है। माननीय आपके मार्गदर्शन से एनएफएसयू परिपक्व हो रहा है। हम सविनय निवेदन करते हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे इस पावन पर्व पर अपने संबोधन से हमको प्रेरित करें, हमारा मार्गदर्शन करें और अपने आशीर्वचन से हम सबको आशीर्वाद दें। तालियों की करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं माननीय श्री अमित शाह जी का। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, श्री ऋषिकेश पटेल जी, उच्च शिक्षा मंत्री गुजरात राज्य, श्री हर्ष संघवी जी, गृह मंत्री गुजरात राज्य, श्री अजय कुमार भल्ला जी, केंद्रीय गृह सचिव, श्री जे.एम. व्यास जी, राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय, श्री प्रियंक कानूनगो जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और आज इस सम्मेलन में उपस्थित सभी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों हिस्सों के तज्ञ जिन्होंने पेपर्स रखे हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स और सभी विद्वज्जनों का मैं हृदय से आज की कॉन्फ्रेंस में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी द्वारा 5वां इंटरनेशनल और 24वां भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन, इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। एक प्रकार से एक संयोगी है कि ऐसे समय पर यह उद्घाटन होने जा रहा है जब भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए एरा में प्रवेश कर रही है। भारत 150 साल पुराने तीनों क्रिमिनल जस्टिस के मूल कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ को स्क्रैप कर नए कानूनों को इंट्रोड्यूस कर चुका है। और संयोग की ही बात है कि तीनों कानून में जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें 2 मुद्दे इसी कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। एक तो समय पर न्याय मिले और दूसरा सजा करने के दर को बढ़ाकर अपराधों पर लगाम लगाना। ये दोनों मुद्दों को टेक्नोलॉजी के स्वीकृति से ये तीनों कानून आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। न केवल प्रयास कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए कानूनी व्यवस्था कर चुके हैं। शायद भारत में पहली बार 2-3 जगह पर एक्सपेरिमेंट कर फिर भी मैं कहूंगा, क्योंकि मैं ही कानूनों को पायलट कर रहा था,
बड़े साहस के साथ हमने एक निर्णय किया है कि 7 साल और उससे बड़ी सजा के लिए हर क्राइम सीन पर फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर का विजिट हमने कंपलसरी कर दिया। और मैं मानता हूं इससे इन्वेस्टिगेशन को भी सरलता मिलेगी, न्याय का काम करने वाले जस्टिस सिस्टम के सभी न्यायाधीशों को भी सरलता होगी और प्रोसिक्यूशन एजेंसी को भी सरलता होगी और सजा का दर बढ़ाने में भी हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। इसके साथ साथ पूरी प्रक्रिया को हम आधुनिक बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी व्यवस्था करने में अभी 5 साल जाएंगे। इसके अलग अलग स्तर हैं, इसके अलग अलग समयावधि है, परंतु 5 साल के बाद, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। और इसी समय ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो बहुत रिलेवेंट है और उपयोगी भी है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी विषय की बात करें, ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारे ऐतिहासिक काम हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कोई सरकार 50 साल चले तो 4-5 युग परिवर्तनकारी काम करती है। ये सरकार ने 10 साल में 50 से ज्यादा युग परिवर्तनकारी काम करे, हर क्षेत्र में करें। मगर मैं इसी क्षेत्र की बात करूं तो 3 बड़े काम ये 10 साल के अंदर हुए और वैसे तो विगत 5 साल में हुए। एक 40 सालों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर ये सरकार आई। मैं थोड़ा आगे बात बताऊंगा जिसका इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उपयोग है, परंतु मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि नई शिक्षा नीति पूर्णतः भारतीय शिक्षा के आधार पर बनी है, इसकी बुनियादों पर बनी है, परंतु पूरे विश्व के लिए खुली है और हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को वैश्विक मंच भी प्रदान करेगी। आपकी सभी क्षमताओं को विश्व के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने में भी सामर्थ्य है उसमें। इसके बाद हमने एनएसएफयू का बेस जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रूप में 2003 में डाला था, उसको एक्सपांड कर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और तीसरा, 150 साल के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन कर हम 3 कानूनों को नया बनाए। ये 3 जो परिवर्तन हुए हैं, ये तीनों परिवर्तनों को एक प्रकार से एक बॉक्स में रखकर देखते हैं तो एजुकेशन, फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये तीनों को आप एक बॉक्स में रखकर देखते हैं तो आमूलचूल परिवर्तन इस क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि आइसोलेशन में नहीं है। पहला कदम 7 साल पहले लिया गया, तब भी दूसरे और तीसरे कदम की कल्पना कर लिया गया था। दूसरा कदम लिया गया 4 साल पहले, तब भी आने वाले कदम की विचार कर लिया गया था। और अभी 3 जो कानून आए हैं वो 7 साल पहले लिए गए कदमों के ट्यून में है। तो एक प्रकार से तीनों निर्णयों को आइसोलेशन में नहीं देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा काम हुआ है। मित्रों, आज श्रीमान व्यास को हमने सम्मानित भी किया। एक सबसे बड़ी लंबी 50 साल की सेवाओं के लिए व्यास जी का सम्मान हुआ है। मैं सभागार से विनंती करूंगा कि एक बार फिर से हम सब इनके सम्मान में
इनका स्वागत करें। मैं गुजरात का गृह मंत्री बना तब से व्यास जी को जानता हूं। हमेशा मोदी जी का जो विजन है कि फॉरेंसिक साइंस का उपयोग न केवल इन्वेस्टिगेशन न्याय दिलाने की प्रक्रिया में भी हो, उसको चरितार्थ करने में श्रीमान व्यास का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और जब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई तब किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि उसका चांसलर किसको बनाया जाए। तुरंत ही जेएम व्यास के नाम को सर्वसम्मति से सबने स्वीकार कर लिया। मैं जब कहता हूं कि 7 साल और उससे ज्यादा अपराध वाले सभी सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर की विजिट कंपलसरी करनी है, तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि 5 साल के बाद इस देश को हर साल 9,000 से ज्यादा साइंटिफिक ऑफिसर और फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट हमें हर साल मिलेंगे। ऐसी व्यवस्था हमने एडवांस में कर दी है जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। मैं फिर से एक बार व्यास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। व्यास जी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप किसी न किसी रूप में फॉरेंसिक साइंस की सेवा करते रहे, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं। मित्रों, आज जो फॉरेंसिक बिहेवियरल साइंस का विषय लेकर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो एक उभरता हुआ क्षेत्र है। और मैं मानता हूं कि अपराध रोकने में जितनी भूमिका कठोर प्रशासन, अच्छे न्यायतंत्र की होती है, इतनी ही ये बिहेवियर साइंस की भी रह सकती है। मैं गुजरात में गृह मंत्री था, देश में भी गृह मंत्री बना, हमने मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाया है। मैं मानता हूं इसके एक स्टेज आगे ये विचार है। अगर बिहेवियर का स्टडी ढंग से कर लिया जाता है और उसका शिक्षा के अंदर और प्राथमिक शिक्षा के अंदर विशेषकर स्थान देकर इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हम क्रिमिनल को खड़ा होने से ही रोक सकते हैं। कुछ तो घटनाओं से क्राइम हो जाते हैं, उसकी हमारे पास कोई काट नहीं है, परंतु साइकोलॉजी को समझकर, बिहेवियर को समझकर अगर इसका उपाय शुरू से करते हैं तो ढेर सारे लोगों के जीवन को भी बचाया जा सकता है और हमारे समाज के अंदर क्राइम की संख्या में बहुत बड़ी कटौती भी लाई जा सकती है। और मैं मानता हूं इसमें अपार संभावना है संशोधन की, इसमें अपार संभावना है काम करने की, और इसमें अपार जरूरत है इसकी मल्टी डायमेंशनल उपयोग की। सिर्फ आप लोग स्टडी करोगे और स्टडी कर कर, मैंने भी आज कुछ पुस्तक प्रकाशित कर दिए, पेपर्स लिखोगे, वाहवाही होगी, इससे नहीं होगा। इसको अप्लाई करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ अपने अन्य विभागों का भी संपर्क भी करना पड़ेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा और थोड़ा आग्रही भी होना पड़ेगा। फॉरेंसिक साइंस अपने आप में आइसोलेशन में समाज की सेवा नहीं कर सकता। न्याय के जितने भी स्टेक होल्डर है न्याय प्रक्रिया के, इसके साथ फॉरेंसिक साइंस का इंटीग्रेशन हम जब तक नहीं करते हैं, हमें फायदा नहीं होगा। फॉरेंसिक साइंस का उपयोग इन्वेस्टिगेशन में भी होना चाहिए, फॉरेंसिक साइंस का उपयोग प्रोसिक्यूशन में भी होना चाहिए, फॉरेंसिक साइंस का उपयोग न्याय प्रणाली में भी होना चाहिए, और अब फॉरेंसिक साइंस के द्वारा दिए गए तारणों को एजुकेशन के अंदर भी एडॉप्ट कर कर हमने एक स्टेप आगे जाने का समय आ गया है। आज इस विषय पर जो आप चर्चा करेंगे वो हो सकता है कि 10-15 साल के बाद देश दुनिया की और देश की सेवा करे, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
और विषय के चुनाव के लिए भी मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव और प्रोटेक्टिव पुलिसिंग की दिशा में ये महत्वपूर्ण आयोजन है। क्रिमिनल माइंड का गहराई से अध्ययन, क्रिमिनल बिहेवियर का अध्ययन और उसका आने वाले दिनों में अपराध को रोकने में स्ट्रेटेजिकल उपयोग और अपराधी खड़े न होने देने में स्ट्रेटेजिकल उपयोग ये करते हैं तो बहुत बड़ी सेवा हम पूरी दुनिया की कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसमें पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक तीनों क्षेत्र के प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को समाहित किया है। लगभग 380 शोध पत्र यहां पर रखे गए हैं। 20 टेक्निकल सेशनों में पूरे सेमिनार को बांटा गया है। मैंने बारीकी से इसको देखा है। एक दो मेरे सुझाव थे, अगली कॉन्फ्रेंस के लिए मैं व्यास जी को दे दूंगा, मैं यहाँ सार्वजनिक करना नहीं चाहता, परंतु आपने जो प्रयास किया है एक प्रकार से कंप्लीट, संपूर्ण प्रयास है। इसके लिए मैं बहुत मन से आप लोगों को अभिनंदन देना चाहता हूं। आज यहां पर एक डिजिटल फॉरेंसिक एक्सेलेंस सेंटर का भी इनॉग्रेशन हुआ है। कंप्यूटर, मोबाइल, मल्टीमीडिया, ड्रोन, सोशल मीडिया, क्लाउड, क्रिप्टो करेंसी, फिनटेक, प्रिवेंटिव फॉरेंसिक्स, डार्क वेब, ये सब के प्रोटेक्शन के लिए और इससे खड़ी हो रही चुनौतियों को हम ढंग से पार कर सके, इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और इन्वेस्टिगेशन में दोनों में सेंटर बड़ी मदद करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, हम सब जानते हैं भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। आजादी मिली तब अनेक लोगों की कल्पना थी, दुनिया के ढेर सारे पंडितों, कोई अनुचित भी नहीं था, मेरा उनसे कोई फरियाद नहीं है, मगर ढेर सारे लोगों की कल्पना थी कि भारत जैसा देश कैसे स्वतंत्र होकर चल पाएगा, ब्रिटिशरों के बगैर हम कैसे चलाएंगे देश को, ये बड़ी आशंका थी दुनिया में। परंतु 75 साल में आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बने हैं और हमारे लोकतंत्र की नींव पाताल से गहरी गई। अनेक स्तर पर अनेक बार सत्ता परिवर्तन लोही की खून की बूंद बहाए बगैर हमने करा है और लोकतंत्र के लिए भारत का जनमानस का आस्था, इस पर दुनिया में आज कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। हमने लोकतंत्र हमारी रगों में है, ये दुनिया को दिखाया है। उस वक्त जब अमृत काल में हमने हमारी सिद्धियों का वखान भी किया, सिद्धियों की प्रसिद्धि भी की, सिद्धियों पर गौरव भी लिया, इसके साथ साथ मोदी जी ने 75 साल से 100 साल की यात्रा का लक्ष्य भी देश के नागरिकों के सामने रखा है। 2047 15 अगस्त को जब देश की आजादी के 100 साल समाप्त होंगे, उस वक्त समाज जीवन के हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, वो 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है और उसको लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। एक महान भारत की रचना के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और अगर मोदी जी के इस संकल्प को हमने चरितार्थ करना है तो ढेर सारे रिफॉर्म्स मोदी जी ने किए हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी किए हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी किए हैं, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में भी किए हैं, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी किए। एक मजबूत नींव के साथ हम 75 साल से 100 साल की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और उस वक्त हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सामने मैं 4 चुनौतियां देख रहा हूं। बेसिक पुलिसिंग के प्रिंसिपल को बरकरार करते हुए टेक्नोलॉजी से युक्त आधुनिक पुलिसिंग की व्यवस्था में परिवर्तित होना, पुलिसिंग के
बेसिक प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज करे बगैर पूरी व्यवस्था में टेक्नोलॉजी को साहजिक रूप से स्वीकार कर सबसे आधुनिक पुलिस व्यवस्था बनना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से ह्यूमन प्रेजेंस का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, इसको कम न होने देना। हाइब्रिड और मल्टी डायमेंशनल थ्रेड्स, जो टेक्नोलॉजी नई नई आई है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ढेर सारे हमारे सामने चैलेंजेस आने वाले हैं। इसको आइडेंटिफाई करना और हमारी सिस्टम को इससे बचाने के लिए एक पूरा नेटवर्क तैयार करना। और चौथा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाना और इसमें फॉरेंसिक के एडॉप्शन को साहजिक स्वभाव बनाना। ये 4 चैलेंजेस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में सबको न्याय मिलना चाहिए, इस बात पर कोई विवाद नहीं है, सब सहमत है सबको न्याय मिलना चाहिए। परंतु समस्या क्या है? न्याय अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। समस्या ये 3 शब्दों के अंदर ही समाहित है और तीनों का उपाय टेक्नोलॉजी में है। अवेलेबिलिटी का भी है, अफोर्डेबल का भी है और एक्सेसिबिलिटी का भी उपाय टेक्नोलॉजी में है। अगर हमने न्याय मिलना चाहिए इसकी सैद्धांतिक सहमति के बाद न्याय मिलने की प्रक्रिया में 3 हर्डल है, ये तीनों हर्डल को हम टेक्नोलॉजी से ही दूर कर सकते हैं। और इसीलिए नए कानून लाए गए हैं और इसमें आज के जैसी कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्राइम के फॉर्म और मोड और मेथड हर रोज बदल रहे हैं। एक जमाने में एक बहुत बड़ी उक्ति थी, शायद के.एम. मुंशी ने बोला हुआ वाक्य है कि पुलिस को अपराधी से 2 कदम आगे रहना चाहिए। जब वो गवर्नर साहब थे तब एक वाक्य बोले थे पासिंग आउट परेड में कि पुलिस को 2 कदम अपराधियों से आगे रहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, अपराध और अपराधियों से पुलिस को 2 जनरेशन आगे रहने की जरूरत है, तभी अब आप कर पाओगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी की जनरेशन ह्यूमन जनरेशन से बहुत फास्ट चेंज हो जाती है। तो हमारी सिस्टम अगर अपराधियों से 2 जनरेशन आगे रहती है तो ही हम अपराध को रोकने की दिशा में सफल होंगे। और मैं विशेषकर व्यास जी को कहना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी के जो नीति नियम है क्राइम को रोकने के लिए, इसमें वैश्विक साम्यता लाने का भी प्रयास करना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर व्यक्ति इंडिविजुअल पूरे विश्व का मदद कर सकता है। हम फ्लो को ठीक करें तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। और फ्लो तभी ठीक हो सकता है जब इसकी कानूनी व्यवस्था में साम्यता हो। तो इसके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी। मेरा यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनसे आग्रह है कि 3 कानूनों का आप जरूर बारीकी से अध्ययन करना। हमने कानूनों में इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और न्यायिक प्रक्रिया तीनों के अंदर फोरेंसिक साइंस को कानून के आधार पर बहुत बड़ा स्थान दिया है। और आपके इंटरेस्ट की भाषा में कहूँ तो आपके लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र नया उभर कर आपकी कैरियर के लिए जनरेट होने जा रहा है।
फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी की मदद से इन्वेस्टिगेशन का इसकी स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी और फेयरनेस, तीनों को हम अच्छे तरीके से कानूनी जामा पहनाकर प्रोटेक्ट कर पाए हैं। इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होगा, इसकी ऑटोनॉमी भी बनी रहेगी और फेयरनेस भी बनी रहेगी, क्योंकि जो वैज्ञानिक सबूत होते हैं ये फेस नहीं देखते हैं, ये रिजल्ट देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली फेयरनेस बन जाती है। और जज साहबों के लिए भी, यहाँ पर बैठे हैं काफी लोग, बड़ी सरलता हो जाती है कि सच बोल रहा है झूठ बोलता है, माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड देखकर आगे काम बढ़ता है। ईज ऑफ पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये दो शब्द अभी हमारे देश में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। मैं मानता हूं कि ये तीन कानूनों से ईज ऑफ पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये दोनों शब्द प्रचलन में भी आएंगे और इसका फायदा भी देश की जनताओं को मिलेगा। अब अगर ये लक्ष्य हमें प्राप्त करना है तो हमने इसके लिए पहले से ही, कानून पारित करने के पहले से ही 5 साल में ढेर सारा काम किया है। जैसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना, इससे ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स, विश्वसनीय ह्यूमन रिसोर्स और युवा हमारे पास जनरेट करने का एक प्रकार से हमने, और आज देश के 9 राज्यों में पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में हम और 9 राज्य कवर कर लेंगे, तो कमोबेश हर 2 राज्य के बीच में एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट खड़ा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेटाबेस का क्रिएशन, मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे डेटाबेस हम 5 साल में क्रिएट कर चुके हैं और बहुत परिश्रम इसके लिए गृह मंत्रालय ने किया है, क्योंकि हमारे यहां लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट में अलग अलग आइडियोलॉजी की, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारें रहती है। कोई भी सर्कुलर करो तो बड़ी शंका के साथ देखते हैं, इसका वो राजनीतिक उपयोग तो नहीं होगा, परंतु कमोबेश सब लोग एक पेज पर आए हैं, कमोबेश नहीं, सभी लोग एक पेज पर आए हैं और बहुत सारे डेटाबेस हम जनरेट करने में सफल हुए हैं। डाटा इंटीग्रेशन के लिए भी ढेर सारा काम हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सभी डेटा, 10 के 10 डेटा एक दूसरे के साथ बात करें, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और उसमें से एनालिसिस के सॉफ्टवेयर भी हमारे यंग बच्चे, मैं कुछ लोगों के साथ पुणे में बैठा था, मुझे तो आश्चर्य हो गया और एक प्रकार से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी खड़ा हो गया है कि ये 18 साल के बच्चे ऐसे करें। मैं 18 साल का था तब कितना बैकवर्ड था। तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है और इस सब का उपयोग करने के लिए नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानूनों का स्मूथ इंप्लीमेंटेशन, ये 3 चैलेंज इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे सामने है, जिसको पार कर कर हमें आगे बढ़ना है और तीनों पर काम हुआ है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से ह्यूमन रिसोर्स की रचना हो रही है, टेक्नोलॉजिकल डेटाबेस बनाए गए हैं और डाटा इंटीग्रेशन का काम भी समाप्त हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सॉफ्टवेयर बन रहे हैं और कानूनों से उसको लीगल तरीके से वैध बनाने का काम भी हमने कर दिया है। एक प्रकार से मैं आपको बताऊं तो लगभग ICGS 1 और 2 के माध्यम से CCTNS से 8 करोड़ से ज्यादा EFIR अब तक रजिस्टर हो चुकी है। 8 करोड़ से ज्यादा, मैं भारत की बात कर रहा हूं बच्चों। देश का हर पुलिस स्टेशन, 7 पुलिस स्टेशन जो एकदम पहाड़ी पर स्थित है, उसका भी हम कोई टेक्निकल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। 7 पुलिस स्टेशन छोड़कर देश का हर पुलिस स्टेशन कंप्यूटर से जुड़ चुका है और डेटाबेस के साथ जुड़ चुका है। ये करने का काम नहीं है, जो हो चुका है वो मैं बताता हूं। ई कोर्ट में 15 करोड़ से ज्यादा
प्रोसिक्यूशन का डेटा ऑनलाइन हो चुका है और वो भारत की सभी भाषाओं में बात करता है, भारत की सभी भाषाओं में। ई प्रिजन से लगभग 2 करोड़ कैदियों का डेटा हम रिकॉर्ड पर ले पाए हैं। ई प्रोसिक्यूशन से 1 करोड़ से ज्यादा प्रोसिक्यूशन का डेटा भी हम रिकॉर्ड पर अब तक प्राप्त कर चुके हैं। और ई फॉरेंसिक से 19 लाख फॉरेंसिक रिजल्ट जो विगत 3 साल के हैं वो सभी को हमने ऑनलाइन डेटा में उपलब्ध कर लिया है। मैं इसलिए बताता हूं कि कानून आइसोलेशन में नहीं आए हैं। मोदी जी कोई काम आइसोलेशन में नहीं करते हैं। कानून लाने से 5 साल पहले ही हमने क्या क्या करना पड़ेगा ये विजुलाइज कर करा है। इसके लिए नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नफीस जो फिंगरप्रिंट का डेटा रखती है, किसी भी जगह से फिंगरप्रिंट मिल जाती है तो 4 करोड़ फिंगरप्रिंट हमारे पास उपलब्ध है। आप ऑनलाइन करोगे तो नाम आ जाएगा। निदान नारकोटिक्स ऑफेंडर का सारा डेटा ऑनलाइन देश का ऑनलाइन हो चुका है। एनडीएसओ सेक्सुअल ऑफेंडर का सारा डेटा ऑनलाइन हो चुका है। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर का एक डेटा हमने ऑनलाइन कर दिया है। आईमॉट टेररिज्म के जुड़े सारे देश के 25 साल के केस, इसकी सजा होने तक की एफआईआर से लेकर डेटा आज आईमॉट पर उपलब्ध है, ऑनलाइन कर चुका है, जिससे हर संगठन ने किए हुए अपराधों की एमओ समझने में बड़ी सरलता हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर का डेटा भी ऑनलाइन हो चुका है। ट्रैक चाइल्ड्स शुरू हो चुका है, इसमें भी सारे बच्चों के जुड़े हुए अपराधों का डेटा ऑनलाइन हो चुका है। इमिग्रेशन वीजा फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम IVFRT वो भी ऑनलाइन हो चुका है। और वाहन और सारथी, इससे देश के सभी वाहन का डेटा भी हमने ऑनलाइन कर चुके हैं। अब ये डेटा सब एक दूसरे के साथ बात करे ऐसी भाषा में हमने जनरेट किए हैं। अब इसके सॉफ्टवेयर बन रहे हैं AI का उपयोग कर जिससे एनालिसिस की सिस्टम सभी प्रकार के डेटाओं के साथ। मैं आपको ये इसलिए बताता हूं कि जब आप कानून पढ़ोगे तो कई न्यायमूर्तियों ने मुझे फोन किया है कि भाई ये तो 50 साल तक हो नहीं पाएगा। 50 साल तक होने का सवाल ही नहीं है। मैं आज विश्वास के देश की जनता को बताता हूं, मैंने देश की संसद में कहा है 5 साल के पहले सब जमीन पर उतरेगा। मैं कहता हूं 3 साल के अंदर पूरी सिस्टम इस कानून के हिसाब से चलती हो जाएगी। इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने नई शिक्षा नीति का एक ढेर सारे आयाम है, मगर एक आयाम जो यहां जरूरी है, मैं बताता हूं, रिलेवेंट है, वो बताता हूं। अब तक हमारी देश की शिक्षा पद्धति वन साइज फिट फॉर ऑल से चलती थी। जिसको वैज्ञानिक बनना है वो भी आर्ट्स पढ़ता था। मैं बेसिक साइंस की बात नहीं, कि ग्रेजुएशन तक की बात कर रहा हूं। जिसको डॉक्टर नहीं बनना है वो भी बायोलॉजी पढ़ता था। जिसको डॉक्टर नहीं बनना है वो भी बायोलॉजी पढ़ता था। जिसको फिजिक्स के क्षेत्र में आगे जाना है वो भी बायोलॉजी पढ़ता था। और जिसको मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना है वो भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ता था। अब हमने डायनेमिक और समयानुकूल बना लिया है और 3 स्तर पर विद्यार्थी अपना करियर चुन सकता है। और समग्र विश्व की शिक्षा को हमने डरे बगैर ओपन किया है। कुछ लोग कहते थे इससे हमारी शिक्षा प्रणाली प्रभावित होगी। मेरा विश्वास है हमारी शिक्षा प्रणाली से विश्व प्रभावित होगा। मेरे मन में कोई संशय नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा मानना है समग्र विश्व में कोई ऑथेंटिक डेटा तो है नहीं, मगर मैं मानता हूं समग्र विश्व में सबसे पहली शिक्षा की शुरुआत अगर कोई एक देश में हुई है तो भारत में हुई। हम सबसे पुराने हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसी का उपयोग कर
हमने फॉरेंसिक साइंस में एक्सपर्ट्स की रचना के लिए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रचना की है। अगर बीएससी करना है तो फॉरेंसिक साइंस में करो भाई, अगर आपको फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में काम करना है तो स्पेशलाइजेशन करो, डबल ग्रेजुएट बनो, रिसर्च करो और क्षेत्र को समृद्ध करो। बाकी सारी चीजों से अलग हटाकर जो बेसिक है तो सब सिखाएंगे, परंतु थ्रस्ट फॉरेंसिक साइंस पर होगा। और ये फॉरेंसिक साइंस की रचना करने के बाद इतने कम समय में 9 कैंपस और विदेश में युगांडा में भी एक कैंपस बनाने का काम एनएफएसयू ने कर लिया है। ये बहुत, इससे ज्यादा स्पीड से कोई यूनिवर्सिटी बढ़ ही नहीं सकती। गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, गुवाहाटी, भोपाल, धारवाड़ सब जगह खुले हैं। और अभी एक सप्ताह पहले ही गृह सचिव जी मेरे साथ पास प्रस्ताव लेकर आए थे और 9 कैंपस बनाने चाहिए और भारत सरकार ने उसको फाइनेंशियली नर्स भी करना चाहिए। हमें विश्वास है कि 9 कैंपस और हम 1 साल के अंदर चालू करेंगे तो देश के हर दूसरे राज्य में कैंपस अवेलेबल हो जाएगा। ढेर सारी उपलब्धियां फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के है, में आज का विषय नहीं है, परंतु R&D के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने 3000 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिकेशन रखे हैं। अपने आप में एम्स के बाद ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने इतने कम समय में 3000 से ज्यादा रिसर्च पेपर रखे हैं। बहुत बड़ी बात है। और R&D ही है जो एक जमाने में हम पिछड़ गए थे दुनिया से, इसको आगे ले जाने में समर्थ हो सकता है। और मैं तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बच्चों को आपने अब तक 3000 रिसर्च पब्लिकेशन दिए हैं और 100 रिसर्च प्रोजेक्ट लिए हैं। मैं तो आग्रह करता हूं इस संख्या को और बढ़ाइए। संतुष्टि रखोगे, सेटिस्फेक्शन रखोगे तो स्टैग्नेंसी प्राप्त करोगे। अध्यात्म की दृष्टि से असंतोष बहुत बुरी चीज है, मगर शिक्षा में असंतोष ही चीज है जो आगे बढ़ाती है। संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़िए और इसको और बढ़ाना चाहिए। और मेक इन इंडिया को भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सार्थक कर रही है। सारी टेक्नोलॉजी को भारत में ही बने। मैंने हंसते हंसते ही बेंगलुरु में एक बार व्यास जी को कह दिया था कि व्यास जी आज उद्घाटन कराया आपने नारकोटिक्स की टेस्टिंग किट तो फॉरेन की है। मुझे आनंद है कि परिचयन नाम की किट 1/3 कॉस्ट में भारतीय, संपूर्ण भारतीय किट बनी है और टेक्नोलॉजिकली ये किट फॉरेन की किट से बहुत एडवांस है। तो ढेर सारा फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने काम किया है। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जानना चाहता हूं। और वन डाटा वन एंट्री का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत को भी मैं आज सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठते हैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हमारे सारे डेटा एक दूसरे के साथ बात करे ऐसी भाषा में ही जनरेट किए गए हैं। अब इसके एनालिसिस के सॉफ्टवेयर बनाने हैं, वो बनाने में आप जरूर आगे बढ़िए। आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं मित्रों कि 3 कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो मैं लेकर आया हूं, और मोदी जी ने बड़ा साहस कर इसको अप्रूव किया है। ये 150 साल से हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से चलते थे। मैं एक छोटी सी बात आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी संपूर्ण न्याय प्रणाली ये न्याय पर आधारित है। न्याय एक अम्ब्रेला टर्म्स है। इसके अंदर विक्टिम भी आता है और जिसने क्राइम किया है वो भी आता है। अब तक हमारी न्याय प्रणाली लंगड़ी थी। इसका नाम ही दंड के नाम से, पिनल कोड रखा गया था, दंड के नाम से रखा है। अब पहली बार न्याय
के मूल भारतीय कंसेप्ट को इसके अंदर स्थान दिया गया है। पहले जो कानून थे, इसका उद्देश्य अंग्रेजों के राज को यहां पर सुरक्षित करना था। जब मैंने कहा तो तुरंत ही बीबीसी की एक महिला पत्रकार का मुझे फोन आ गया, कितना बड़ा आरोप आप कैसे कर सकते हैं। मैं समझाता हूं आपको, अगर खुला मन है तो वो आई भी, समझी भी और स्वीकार भी किया। मैंने बोला सबसे बड़ा ऑफेंस क्या हो सकता है? 150 साल के पहले की बात करें तो भी, तो मानव शरीर के साथ अपराध सबसे बड़ा होता। आज के हम काफी आगे बढ़ चुके, दुनिया, समाज, देश आगे बढ़ चुका है, तो बच्चों और महिलाओं के साथ अपराध से बड़ा कोई अपराध ही नहीं हो सकता। तो मानव वध मतलब हत्या, मर्डर 302 नंबर पर था। उसके पहले देश के खजाना लूटना, रेलवे तोड़ना वो था। मैंने बताओ भाई ये प्रायोरिटी क्या थी आपकी? आपकी प्रायोरिटी देश का खजाना मतलब ब्रिटिश सरकार का खजाना बचाने थी, आपकी आवाजाही के लिए रेलवे करना था। अब इस कानूनों में सबसे पहला, जहां इंट्रोडक्टरी चैप्टर अलग बात है, मगर सबसे पहला चैप्टर जहां से कानूनों की धाराएं शुरू होती है, अपराधों की धारा शुरू होती है, वो चैप्टर है महिला और बच्चों के साथ अपराध का, और इसके बाद मानव से। हमारे संविधान ने नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकारों के संरक्षण के लिए और उसके निर्वहन के लिए, इसके लिए जो ड्यूटी है, ड्यूटी के निर्वहन के लिए कानून बनाए गए हैं। और अभी भी मेरी बात मानकर चलना, ये बहुत बड़ा लेक्चर है, यहां समय भी नहीं होता है और स्थान भी उचित नहीं है, परंतु मैं आपको कहता हूं संपूर्ण भारतीय दृष्टि से न्याय बनाया गया है। हमारे यहां न्याय अंग्रेज लेकर नहीं आए थे, हम सालों से न्याय करते थे। न्याय संहिताएं ढेर सारी है। हमारे न्याय को कंसेप्ट को हमने जमीन पर उतारा है। हमने टेक्नोलॉजी के सारे उपयोग को कानूनी मान्यता देने का प्रयास किया है। जैसे डॉक्यूमेंट है तो हमने इसमें ई डॉक्यूमेंट को समावेश कर लिया। मैं इसलिए आपको समझाता हूं, ये पेन ड्राइव तक सीमित नहीं है। अगले 100 साल तक जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वो इसी भाषा के अंदर समाहित हो जाएगी। फिर सिर्फ आपको रूल्स में चेंज करना है। तो आज की विद्यमान सारी टेक्नोलॉजी को हमने इसके अंदर स्वीकार किया है और 100 साल तक आने वाली टेक्नोलॉजी को विजुलाइज कर कर इसकी कानूनी व्याख्या में समाहित कर कर कानूनों को बहुत बड़े लंबे सोच विचार के साथ, और इसमें एनएफएसयू का भी बड़ा रोल है। लगभग 35 जगह पे हमने समय सीमाएं बनाई है, पुलिस के लिए भी, प्रोसिक्यूशन एजेंसी के लिए भी और जजों के लिए भी। जज साहबों को जरूर नाराजगी होगी, पुलिस नाराज होगी तो बोलेगी नहीं, परंतु ये न्याय को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है। न्याय हास्यास्पद नहीं बनना चाहिए। मैं जब ये बिल रख रहा था, मेरे साथ में रक्षा मंत्री बैठे थे। 35 साल के बाद इनके कोई एक्सीडेंट का नोटिस 2 दिन पहले ही इन पर आया था। ये हो गए 75 के, और जो मर गया था उसकी तीसरी पीढ़ी चल रही है। अब न्याय लेकर भी कोई क्या करेगा, न्याय देकर भी कोई क्या करेगा। तो न्याय को रिलेवेंट बनाने के लिए बहुत काम किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दृढ़ता के साथ, अगर तीनों क्षेत्रों का मुझे सहकार मिला, और मुझे विश्वास है कोऑपरेशन मिलेगा इसमें, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, तो 3 साल में हर एफआईआर का जजमेंट आना ही आना सुनिश्चित हो जाएगा। कुछ नहीं, कुछ होगा। और 5 साल लगेंगे सिस्टम बनाते हुए, एडॉप्ट करते हुए, पुराना बैकलॉग निकालते। परंतु मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं कि हमने एक देश में कानून बनाया कि भाई उगाही के क्रिमिनल तरीके हो गए, तो चेक रिटर्न पर हमने एक कानून बनाया कि चेक रिटर्न होता है तो 6 माह की सजा है। कभी किसी को हुई नहीं, क्योंकि केस ही नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? तो कोर्ट वाले
अरे बैंक वाले कोर्ट में आते ही नहीं, सुबह 10 बजे आ जाएंगे, 5 बजे के बाद कहेंगे कब 1.5 महीने बाद का डेट पड़ा है, पूरा दिन बेकार जाए। अब हमने कहा है कि तेरे बैंक के तय किए हुए कंप्यूटर से ऑनलाइन आप गवाही दे सकते हो, ये वैध कर दी है। तो एक दिन में 45 केस धड़ 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 कर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक ही सेंटेंस कहना है कि इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण ये चेक रिटर्न हुआ है और कोई टेक्निकल कारण नहीं है। तो केस में और कुछ तो करना ही नहीं है। हमने ई गवाही को फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, फॉरेंसिक साइंस के साइंटिफिक ऑफिसर भी कभी कोर्ट नहीं जाते हैं, काम की प्रायोरिटी होगी शायद, परंतु अब इनको भी जाने की जरूरत नहीं है। आपकी एफएसएल में से ही सीधा कोर्ट में जाकर आप गवाही दे सकते हो। पुलिस ऑफिसर भी अपने पुलिस स्टेशन में बैठकर गवाही दे सकता है। यहां डीजीपी बैठे हैं गुजरात के, ये एसपी होंगे, किसी की प्रोसिक्यूशन की परमिशन दी होगी, आज उनको गवाही में बुलाएंगे, वलसाड़ में आइए, आप पहले एसपी थे तब था। अब उनको कुछ याद नहीं है बेचारे को, 30 साल पहले क्या हुआ था कुछ याद नहीं है। अब हमने कह दिया है कि फाइल पर से देखकर अभी का जो एसपी है वो ही कोर्ट को असिस्ट करेगा, पुराने ऑफिसर को आने की जरूरत नहीं है। हमने ये भी प्रोविजन रखा है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर न्यायाधीश साहब को लगता है कि उनको ही बात करनी तो ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे न्याय का नुकसान न हो, परंतु ज्यादातर केसों में हो जाए। इस प्रकार से हमने ढेर सारी जगहों पे, 35 जगहों पे अलग अलग प्रकार से इसको काटने की व्यवस्था की। ईज ऑफ जस्टिस के लेकर सरल, सुसंगत, पारदर्शी और समय अनुसार, ये चारों लिम को हमने एडॉप्ट किया है। इसके लिए ढेर सारे काम किए हैं। और जैसा मैंने कहा, फॉरेंसिक के लिए 7 साल और उसके पहले की आगे के जितनी भी सजाएं उसमें कंपलसरी किया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को हमने कानूनी दर्जा दिया है। एफआईआर से मुकदमे तक की सारी चीज ऑनलाइन विक्टिम के लिए उपलब्ध रहेगी। फॉरेंसिक साक्ष्य तलाशी और जब्ती के वक्त ऑडियो वीडियोग्राफी हमने कंपलसरी कर दिया है। पुलिस के बयान में भी जब महिलाओं के साथ अपराध होता है तो वीडियोग्राफी हमने कंपल्सल कर रही है। पूरे देश में अलग अलग प्रकार की न्याय व्यवस्थाएं थी, बड़े शहरों में अलग थी, छोटे गांव, सब अब एक हो गया है। पहली बार टेररिज्म और संगठित अपराध को डिफाइन किया गया है। राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह का धारा लाया गया है और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के पद को कंपलसरी कर स्ट्रेंथनिंग कर अलग अलग प्रकार के पद जनरेट कर करप्शन को भी रोकने के लिए हमने बहुत बड़ा प्रयास किया है। मित्रों, मैं आज यहाँ पर आया हूँ तब आपके पूरे चर्चाओं के दौरान भी मुझे लगता है कि नए कानूनों के बारे में भी एक एंगल रहना चाहिए। इसको पॉपुलर बनाना, इसको जमीन पर उतारना, ये हम सबका दायित्व है। और आज जब मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में आया हूँ और विशेषकर इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो जरूर कहना चाहूँगा, मोदी जी ने हर क्षेत्र में विश्व में पहले नंबर की कल्पना की है, इसमें फॉरेंसिक साइंस भी है। ये काम आप सभी को करना है। आज भी मैं कहता हूं, विश्व भर में फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में भारत बहुत ऊपर के क्रमांक में शायद पहला भी होगा, परंतु ये व्यवस्थाएं बन जाने के बाद मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारत का ही अधिकार है फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में एक नंबर बनने का। बच्चों को काम करना है, रिसर्च, डेवलपमेंट, स्टडी और इसके विज्ञान का न्याय दिलाने की प्रक्रिया में सरल और समुचित उपयोग। इसके लिए आपको अपनी मेंटालिटी को भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो रिजल्ट लेकर आते हो वो अगर न्याय के काम में नहीं आता है तो वो सिर्फ एकेडमिक काम में आएगा। फिर तो आपकी मानसिकता पूरी न्याय प्रणालिका के अंदर एडजस्ट होने की भी साइंटिफिक ऑफिसर नाते बनानी पड़ेगी। मुझे यहाँ पर बुलाया आप लोगों ने और नए कानूनों और फॉरेंसिक साइंस पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में कलेक्टिव नॉलेज और कोलैबोरेटरी स्पिरिट
इसके आधार पर हम आगे बढ़ें और जब 2047 में देश आज़ादी की शताब्दी बनाना हो, हम लोग तो नहीं होंगे मगर ये स्टूडेंट सारे होंगे, तब हमारा स्वप्न जो आज़ादी के आंदोलन के साथ के लिए अपना बलिदान देने वाले लोग थे, इनका स्वप्न हम सब मिलकर साकार करें। यही है अभ्यर्थना। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरित संबोधन के लिए। बड़े दिनों के बाद ये दिन आज पूर्ण होंगे, सबके काज होंगे, अब राम राज होंगे। माननीय, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके दिखाए मार्ग पर चलकर एनएफएसयू भारत को फॉरेंसिक के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कटिबद्ध रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हम सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े रहेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे।